He is unable to join. Why? કેવું આવે છે? He is unable to join. એવું આવે છે. Done. શું કશું બોલવું છે? આ છે ને હેલો હેલો. કેમ છો? બસ મજામાં. તમે મજામાં? બસ મજા. Okay. Yes. Hello everyone. Let's meet Chirag. He lives in USA, New Jersey, and he is a computer engineer. Chirag, can you please introduce yourself? હાય એવરીબડી. સો બેઝિકલી જેમ બાબરા કીધું, મારું નામ ચિરાગ છે. હું રહું છું ન્યૂ જર્સી યુએસએ માં અને સોફ્ટવેર ડેવલપર તરીકે કામ કરું છું. બેઝિકલી એસએપી ERP સિસ્ટમ હોય છે એમાં, અને સીવીએસ કરીને અહીંયા એક રિટેલ ફાર્મા કંપની છે એમાં કામ કરું છું. છેલ્લા 10 વર્ષથી આપણે યુએસ માં રહીએ. છેલ્લા 10 વર્ષથી યુએસમાં રહે છે. 10 વર્ષથી. બટ હા, ઘણા બધા એવા છે કે જે હિન્દી અને ઇંગ્લિશ વાળા છે, તો આપણે હિન્દીમાં જ કન્ટિન્યુ કરીએ તો વધારે સારું. સારું. So let's reintroduce yourself so that Nand and all they will understand that you are live right now. Okay, so basically, I myself, Chirag Parmar, I Yes. have basically in the USA since last 10 years. This is my 11th year, in fact. And I'm working as a software developer in SAP ERP. That's basically, a software ERP company. They provide like a different kind of software for ERP management systems. And I work I work at a CVS, basically a company called CVS. They are mainly into retail and pharmaceutical business. They're not a manufacturing, just like kind of a retail for pharma and other stuff, basically. So yeah, that's my short introduction. Yeah. It's lovely introduction. You went in USA, मतलब 10 साल पहले आपने सोचा था ना यूएस जाने के लिए, तो कोई पर्टिकुलर रीजन था कि आपको यूएस जाना है? So I actually see, when I was in 8th or 7th standard, right? I had a lot of friends whose relatives were in USA. So I basically had a group of friends there. Either relatives were there or they themselves were from there. I had one of my classmate in 12th who was from actually Canada. So I had a long-awaited dream to go to USA. And by the 8th standard, there was a couple of teachers who were, always talk about how the progressive things and IT industry is in USA. So that's one of my driving factor why I chose to basically, go to USA. And another reason why I chose the computer science also. So Okay. yeah, that was the driving factor basically. I had a long-awaited dream, probably when I was a kid. So That yeah. means that that means the dream comes true. Oh yes, definitely. So there's a lot of saying if you know, right? Basically, if you keep it out there in the air, sooner or later that will happen. Basically, if you keep talking to yourself, right, that success will come. Success will definitely come. Yes, that means you believe in affirmations. Yeah, absolutely. I am a very, very much believer in that. Yeah, we have done a Okay. lot of in my life, I have done a lot of things where basically if you put it out there, it will come true. So yeah, I do believe that.
Okay, very nice. So, if we talk about computer engineering and if we talk about before 10 years and now, is there any difference between skills or do anything मतलब कि कुछ चेंज है स्किल्स में जो चाहिए? सी अकॉर्डिंग टू मी, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि स्किल्स एंड ऑल आर स्टिल द सेम. इट्स जस्ट दैट लाइक नाउ पीपल आर गेनिंग मोर स्किल्स. अर्लियर कैसा होता था कि हम्म कोई एक स्किल सीख लेता था एंड दे जस्ट बेसिकली गेट इनटू अ कंपनी एंड देन दे जस्ट सर्वाइव. बट अभी ऐसा है कि एक स्किल भी सीखोगे देन यू विल नीड लाइक मल्टीपल स्किल्स ऑल टुगेदर इन टोटल. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं एसएपी का, राइट? तो हम्म एसएपी में अगर आपने सिर्फ एक एक चीज सीख लिया तो ऐसा नहीं कि आप पूरा सर्वाइव करोगे. अभी बेसिकली एसएपी खुद भी पूरा चेंज हो रहा है. लाइक ओरेकल है, एसएपी है, जावा है, ऐसा कई सारे चीज चीज है जो बेसिकली अगर आप एक चीज सीखोगे तो यू हैव टू हैव मल्टीपल स्टफ इन दैट सेम चीज ऑल्सो. तो बेसिकली ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एसएपी सीख लिया तो आपको आगे जॉब मिलता ही रहेगा. आपको बेसिकली कंटिन्यू टू इवॉल्व होना ही रहेगा. कभी भी आप जाओगे यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू कीप लर्निंग. जैसे कि मैं अगर कल का ही बात करूं तो बेसिकली देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर अस. हम्म तो जो एसएपी था उसके बाजू में उसको सेल्स फोर्स को कनेक्ट करना था. तो ऐसा इंटरफेस का भी रहता है जो साथ साथ में. तो आपको थोड़ा बहुत उसका भी ज्ञान होना चाहिए तो इट्स लाइक अर्लियर ऐसा था कि थोड़ा चल जाता था बट अभी बेसिकली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इवॉल्विंग. सो आई वुड से कीप लर्निंग, एड मोर स्किल्स टू योर रेज्यूमे एंड बेसिकली यू विल थ्राइव. fine. So, can you say something more about SAP? तो बेसिकली सी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से मैं एक छोटा सा बिजनेस बना रहा हूँ, राइट? ठीक है, मेरे पास एक शॉप है फॉर एग्जांपल. तो हम्म ऐसे शॉप में रहता है कि मेरे पास कितना इन्वेंट्री है कोई भी चीज का, राइट? तो एक हम्म इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो जाता है. फिर मैं 10 से 15 एम्प्लॉय को रखता हूँ तो एचआर हम्म डिपार्टमेंट हो जाता है, राइट? सो हम्म फिर मैं जो परचेज करता हूँ, फिर मैं जो सेल्स करता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन होता है वो सब. तो बेसिकली वो जीएलवीएल हो जाता है, जनरल लेजर, जो पहले अपन नहीं मुनीम मुनीम लोग जहाँ रखते थे बस हाँ हाँ वैसा ही. हाँ सो बेसिकली अच्छा अभी उसको हम लोगों ने एडवांस कर लिया है. तो एसएपी हाँ करके एक कंपनी है जो ऐसे हाँ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जो बेसिकली आपको ऑटोमेटिक कर देगा सब कुछ. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल्स ऑर्डर बनाना है तो सेल्स ऑर्डर बना देगा, इनवॉइस बनाना है इनवॉइस बना देगा. आपको सिर्फ डेटा एंटर करना रहता है बस, और कुछ नहीं. सो दैट्स बेसिकली एसएपी इन होल. that means there ऐसे is कई difference. सारे सिस्टम है एसएपी के Mm-hmm. जैसे कई सारे सिस्टम है बट आई थिंक एसएपी इज प्रॉब्ली ग्लोबल लीडर इन ईआरपी. Okay, very nice. Is there any difference between ChatGPT and SAP? अरे चैट जीपीटी तो एआई हो गया. चैट जीपीटी तो बड़ा बड़ा हो गया है. बट एसएपी एक मैं बता रहा हूँ, एसएपी इज काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो कि इंटर कंपनी में या कंपनीज में ज्यादा रहता है. चैट जीपीटी पूरा वेब पे रहता है बेसिकली. तो आप इनपुट करोगे तो बेसिकली ना आपको वो स्मार्ट रिप्लाई देगा लाइक एनीथिंग. बट एसएपी ऐसा नहीं है. एसएपी इज लाइक मोर फॉर कॉर्पोरेट एंड ऑल. Yes, that's what I wanted to know from you so that the students can understand what is the difference between web and the software. या So now another thing is basically आप AI का बात निकाला ही रहे. So I'll just add up some of this, right? So nowadays I'm seeing AI in a lot of technologies. So if you have that Yes. skill, that is also a pretty big advantage. Like couple of days back, we had a seminar in our company. They were Hmm. teaching us how to connect AI with SAP. So Oh. basically it's getting everywhere. And US being the global leader in technology, right? तो सुनर Hmm. और लेटर वो आ ही जाएगा अगर आप नहीं भी सीखना चाहोगे तो आपको सीखना ही पड़ेगा. तो सीखना ही पड़ेगा यार, ये तो है. मतलब कि तो आप कोई भी फील्ड में हो जैसे आपने बोला कि यू हैव टू कीप लर्निंग तो आपको एआई सीखना ही पड़ेगा उसके अलावा आपका हाँ कुछ चलेगा ही नहीं. हाँ, अभी ऐसा है ना कि अभी जो पहले ट्रेंड ऐसा था कि एआई ज्यादा आएगा नहीं बट अभी तो हम्म ऐसा है कि एआई सब में आ रहा है बेसिकली. सो इवन हम्म इफ यू डोंट लर्न इट इट्स बेसिकली योर लॉस बेसिकली. अगर आप सीख जाओगे तो बेसिकली इट्स योर एडवांटेज. और सुनर हम्म और लेटर तो आपको सीखना ही है बेसिकली. अच्छा मतलब करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको स्किल सीखनी ही पड़ेगी. हाँ ये तो है ही. और अभी ऐसा हो रहा है कि अभी कंपनीज भी दे आर ट्राइंग टू ऑटोमेट दैट सिस्टम. जहां पे भी आप जाओगे ना, हम्म ऐसा नहीं बोलूंगा कि लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत हम्म है. बट फिर हम्म भी लाइक दे विल ट्राई टू सेव मनी. कंपनी अगर कोई होगा तो वो ऐसे ही सोचेगा ना कि मैं हम्म कोई काम करा रहा हूँ $100 में,
तो मैं हम्म। उसको $10 में कैसे कराऊं, ताकि $90 हाँ। मेरे जेब में जाए, राइट? तो ऐसा ही रहेगा वो तो अच्छा। इसीलिए बेसिकली ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे सब जगह। ओके, मतलब आप कोई भी फील्ड में हो, आपको डिजिटल तो सीखना ही पड़ेगा, उसके अलावा चलेगा ही नहीं। तो हाँ, एक कोई भी मेन फील्ड में अभी मैसेज तो है। ऐसा ही है। यप यप, एग्जैक्टली। अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है जो मैकेनिकल्स में था, तो हम्म। उसको बेसिकली, मुझे नहीं आइडिया है, वो ऑटो कैड करके जो सॉफ्टवेयर रहता था ना, हम्म। पहले बहुत, तो हाँ। पता नहीं वो कुछ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके कुछ तो लाया था एआई का। तो बोल रहा था अच्छा। कि एआई से अभी उसको ज्यादा फायदा होता है, ऑटो कैड और वो सब सॉफ्टवेयर जो पहले होते थे ना उससे। तो अच्छा। बेसिकली एआई बेसिकली अभी हर जगह आने लगा है, तो इट्स हम्म। बेटर टू लर्न इट नाउ देन लेटर। वेरी तो ट्रू। ये है। यस। ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड है चिराग, इसमें चैलेंजेस भी होंगी, यस, डेफिनेटली। उसके सो बारे में थोड़ा बात करेंगे? सो देखिए, इसमें दो चीज रहता है कि अगर आप लाइक इंडिया से है फॉर एग्जांपल, राइट? सो इफ यू वांट टू डू योर बैचलर्स इन इंडिया, राइट, तो आप या कंप्यूटर्स कर सकते हो या आईटी कर सकते हो। हाँ, चैलेंजेस रहते हैं, बट हम्म। लाइक मेजर लेवल पे चैलेंजेस ये नहीं रहेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें थ्राइव करना चाहते हो आगे, तो हम्म। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा, आप ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। बट मेरे हिसाब से आईटी और कंप्यूटर्स में अगर आप सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उससे अच्छा फील्ड बहुत कम है बेसिकली, हम्म। देयर आर लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हर कंपनी में आईटी तो रहता ही है। ट्रू। तो चैलेंजेस ये बोलूंगा कि हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है इनिशियली सीखना। अगर आप ने कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, ऐसे ही आप 12th के बाद अगर पास आउट होके आप आ गए थिंकिंग दैट लाइक आईटी तो हमको इंटरेस्ट है, कर लेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट या आई मीन बेसिकली आपको पूरा माइंड से खेलना पड़ेगा, आईटी में और पूरा उसमें। सो या आई मीन चैलेंजेस थोड़ा रहता है, बट इट्स जस्ट नॉर्मल, नॉट दैट बिग ऑफ चैलेंजेस, लाइक यू जस्ट हैव टू कीप लर्निंग, दैट्स ऑल। दैट मीन्स पैसिव लर्निंग नहीं चलेगी, यू विल हैव टू बी अलर्ट ऑल टाइम। यस, तो अगर देखो मैं बताऊं ना आपको कि हमारे कॉलेज का ही बात करूं, हमारे कॉलेज में ऐसे कई लोग थे जो कि हम्म। यूनिवर्सिटी रैंकर्स होते थे उस पर। तो हम्म। यूनिवर्सिटी में नंबर 1 नंबर 2 ऐसे हमारे कॉलेज में आते थे। हाँ। तो अगर उनकी बात करूं, अगर मेरी बात करूं, तो मैं कभी यूनिवर्सिटी रैंक नहीं लाया, कभी भी नहीं। हाँ, मैं डिस्टिंक्शन होके पास हुआ हूँ कई बार, बट लाइक हम्म। यूनिवर्सिटी रैंक मेरा कोई सेमेस्टर में नहीं आया। बट अगर मैं देखने जाऊं कि कितने लोग ओरेकल या ऐसे भी में जॉब करते हैं, तो हम्म। शायद ही मैं दो तीन गिन पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है हमारे कॉलेज में काफी सारे लोग थे जो टीचर्स का जॉब करते हैं। हम्म। तो बेसिकली जो बेसिकली आउट ऑफ कैसे बोलते हैं ना, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, जो सीख नहीं पाते ना, लाइक हम्म। दे बेसिकली टेंड टू डू सम क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो कुछ बेसिकली सीखना ना आगे चाहते हो आगे कि बढ़ना गिर नहीं चाहते, जाता है। हाँ हाँ। जिनका यही दैट मोटिव मीन्स होता है रेस्ट कि ऑफ हम लोग सिर्फ पैसा समवन। कमाना चाहते हैं, दैट्स ऑल। सो बेसिकली वो छोटे मोटे जॉब करके बेसिकली वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। बट जिनका ड्रीम बड़ा होता है, लाइक हमारे ग्रुप में ऐसे कई लोग थे जिनका ड्रीम ऐसा था कि हम आगे चल के अपना कंपनी भी खोलेंगे, हम आगे चल के कोई बड़ी एमएनसी में जॉब करेंगे, राइट? तो ऐसे लोग थे जो पढ़ाई पे ध्यान देते थे, बट पढ़ाई से ज्यादा लर्निंग पे ध्यान देते थे, ताकि क्या वो सिर्फ रट्टा मार के नहीं आते थे। दे ऑलवेज लाइक लर्न स्टफ बिहाइंड द पिक्चर, क्या होता है डेटाबेस हाँ। में, क्या होता है, लाइक कोडिंग कैसे करते हैं, वो सब सीखते थे। तो उनमें से मैं भी एक था। तो बेसिकली तो ऐसा है कि लाइक आप रट्टा मारने जाओगे, लाइक स्कूल में वो सब चल जाएगा, बट आई थिंक इन लर्निंग रियल वर्ल्ड यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड द बिहाइंड द कर्टन पिक्चर्स, लाइक हाउ इट इज वर्किंग एंड ऑल। तो ये थोड़े चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि आपको कई बार रिसोर्सेज नहीं मिलते ये सब। खैर हम लोग थे उस वक्त तो थोड़ा कम था ये सब, बट जैसे ही अभी के टाइम में देखोगे तो आपको बहुत इजीली रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे और बहुत इजीली आपको एक्सेस भी मिल जाएगा सभी चीजों का। तो बस यही है कि आप जस्ट रट्टा मत मारो, बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड बिहाइंड द पिक्चर, एंड आई थिंक यू विल फाइंड, दैट्स That ऑल। means certification is not the key to learn anything. You will have to keep learning. Alert रहना पड़ेगा आपको। चीजों को वो ओपन, दैट मीन्स क्लोज एंडेड नहीं चाहिए, ओपन एंडेड चाहिए कि आप उसको इजीली अडाप्ट कर पाओ। अडेप्टिबिलिटी चाहिए, और फिक्स माइंडसेट नहीं चलता है। यू विल हैव टू ओपन योर माइंडसेट। वेरी एग्जैक्टली, आपको मैं बता ना, आपको बिहाइंड द पिक्चर समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है। लाइक आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, राइट? तो हम्म। आपको पता होना चाहिए कि वो ठंडा गर्म कैसे करता है, लाइक सेम थिंग इन रियल वर्ल्ड।
क्योंकि कंपनी अगर आपको पैसा दे रहा है ना, $500 दे रहा है ना, तो आपसे वो $5000 का काम करवाएगा बेसिकली। हाँ। अल्टीमेटली अगर आपका खुद का बिजनेस भी होगा तो आपको भी यही सेम माइंडसेट से आगे चलना पड़ेगा। अच्छा, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके वर्किंग आवर्स है 5 to 7, सपोज फॉर एग्जांपल मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 5 o'clock, बट आपको हम्म। जॉब तो 24/7 करनी ही पड़ेगी बाय माइंड। ये है कि लाइक कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि लाइक ओके, मैं एक कंपनी में हूँ तो मैं अभी सेटल हूँ, मैं कुछ आगे देखना नहीं चाहता, राइट। दे विल प्रॉब्ली हमारे पास, मेरे पास काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो बेसिकली दे जस्ट वांट स्टे, लाइक 40-45 के बाद जो बेसिकली सेटल ही होना चाहते हैं, राइट। बट हम्म। दैट्स आफ्टर 40-45। If you are till 40, basically, I would never suggest anybody to take a rest or settle down, basically. Even if you are settled down in a company, I would say like keep learning. In the same company also, you keep learning. Because जब 40-45 के बाद आप आ जाते हो ना, तो आपके पास एक सर्टेन लेवल का एक्सपीरियंस होता है, तो क्या आप जल्दी से ऊपर आगे बढ़ सकते हो। बट हम्म। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 40-45 के बाद भी सीखते रहते हैं, तो वही लोग होते हैं जो बेसिकली पूरा मार्केट ड्राइव करते हैं। तो बेसिकली ये है कि आप हमेशा सीखते ही रहो। सीखने हम्म। की कोई उम्र नहीं होती, जो बोलते हैं ना। यही है। सही है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी 12th की एग्जाम खत्म हो गई। तो अभी बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना तो है। वो तीन ही चीज बोलते हैं, इधर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बोलेंगे, या तो फिर मेडिकल में जाना है वो बोलेंगे। बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, पर क्यों जाना है, उसमें कौन सी स्किल्स चाहिए, उनको एडमिशन क्यों लेना है, फिर क्या होगा कि दो एडमिशन लिया, 2 महीने हुए, फिर उसको उनको ऐसा लगता है कि फालतू में एडमिशन ले लिया, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया कि आप खुद कंप्यूटर इंजीनियर हो, और हम्म। आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आप अभी जो प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हो कि कंपनी में ये चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, यू विल हैव टू कीप लर्निंग, फिर आपको बिहाइंड डोर काम करना पड़ेगा। तो यही आप थोड़ा क्या बोलते हैं उनको, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कर दोगे, सो द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी हमारा तो करियर बन गया, बट हमारी अभी एज सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यूथ आ रहा है वो भी समझे। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था ना कि मैं पहले से हमेशा कंप्यूटर्स में जाना चाहता हूँ, राइट। तो एक ऐसा है कि पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट्स वेरी यस। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर यस। ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रीम आगे बढ़ रही है, कौन सी नहीं। आप गूगल तो है ही सबके पास अवेलेबल, राइट। तो गूगल हम्म। करो कौन सी टेक्नोलॉजी कब से ज्यादा आगे है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईटी में सबसे ज्यादा अभी जो चल रहा है वो है एसएपी, जो कि पूरा मार्केट लीडर है। एसएपी में हम्म। भी बहुत सारे ब्रांचेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रांच है, बहुत हम्म। सारी ब्रांचेस है। और लाइक देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। सेम टू हम्म। सेम ऐसा ओरेकल करके भी एक सिस्टम है, ओरेकल कंपनी है, उसका भी पूरा सिस्टम है, जो हम्म। कि बेसिकली नथिंग बट अ डेटाबेस जिसे बोलते हैं हम लोग। तो हम्म। डेटाबेस में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। फिर हम्म। थर्ड टेक्नोलॉजी है जावा है। फिर एक हम्म। सेल्स फोर्स करके भी है। तो ये सारी हम्म। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, ऐसे जो पाइथन है, ये सब है। तो बहुत हम्म। सारी है। बट लाइक दिस आर लाइक ग्लोबल लीडर जिसे बोल सकते हो, जहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहती है बेसिकली। हम्म। अभी देखिए, 12th के बाद अगर आप बात करें, राइट, तो दो चीज है। कई बंदे देते हैं जो बीसीए करते हैं, फिर जाके हम्म। जाके एमसीए करते हैं। तो एक वो हम्म। स्ट्रीम है, देख सकते हो आप। फिर हम्म। दूसरा है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते आईटी। हो, 4 इयर्स हाँ। का बैचलर आईटी, राइट। हम्म। बीसीए बीसीए करके आप बेसिकली समटाइम्स स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, यूएस में आ जाते हैं, या कनाडा आ जाते हैं, या जर्मनी चले जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, राइट। तो हम्म। वहां पे वो लोग मास्टर्स करते हैं किसी में भी। तो वो भी एक हम्म। अच्छा ऑप्शन है। हम्म। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा था वो सबसे अच्छा है, बेसिकली दैट्स बेसिकली मेन। हम्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगा, आपको हार्डवेयर का कम उसमें सब्जेक्ट आता है। बट हम्म। यू कैन डू दैट ऑल्सो। हम्म। फिर एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट आता है, आई मीन हम्म। स्ट्रीम आता है, जो कि सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा ही होता है, वो साइड बाय साइड ही होता है। बट हम्म। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मेरे हिसाब से वो हार्डवेयर का भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं आपको। तो यू अच्छा। विल गेट एन ओवरऑल आइडिया कि भैया क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लाइक व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज बाइनरी कोडिंग एंड ऑल्सो। तो ये हम्म। है। बट ये तीन स्ट्रीम है जो मैं समझता हूँ कि काफी रिलेवेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। अगर आपने 4 इयर्स का बैचलर्स कर लिया, या तो बीसीए का 3 इयर्स का कर लिया, राइट।
तो आप हम्म फिर मास्टर्स कर सकते हो आगे, एमई कर सकते हो, या फिर अगर आपको मास्टर्स करने के लिए कहीं और किसी और कंट्री में जाना चाहते हो आप, तो स्पेसिफिक स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में उसको कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, हम्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी कंप्यूटर साइंस ही बोलते हैं, आईटी भी बोलते हैं उसको। बट या हम्म कंप्यूटर साइंस एक मेन कोर्स है यूएस में। डिपेंड हम्म नहीं करता है कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, राइट? देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूएस विच यू कैन हम्म सिलेक्ट। सेम टू सेम आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इवन जर्मनी भी बड़ा बड़ा अच्छा लीडर है। बेसिकली ये एसएपी का कंपनी जर्मनी का ही है, तो यस जर्मनी में भी जा सकते हो आप। दिस आर लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। हम्म अभी आप विदेश कैसे जाओगे, तो विदेश के लिए भी दो तीन ऑप्शन हाँ, है वो भी कि मेरा क्वेश्चन था कि बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो 12th के बाद अपने बच्चों को अब्रॉड भेजे या फिर मास्टर्स के लिए भेजे, क्योंकि यहाँ ही मैं सबका तो हसल बसर होता है। तो क्या आप उसके बारे में कोई पर्टिकुलर आंसर दे सकते हैं? मैं पर्सनली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो मैंने कंप्यूटर साइंस उधर से किया हुआ है। तो हम्म मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज या सब्जेक्ट्स जो मैंने उधर पढ़े हैं ना, सेम हम्म, सब्जेक्ट्स ही मैं इधर मास्टर्स में पढ़ रहा हूँ। ये है कि अच्छा। जो एडवांस लेवल का है ना, वो बेसिकली वो 6 महीने या 4 महीने का इधर सेमेस्टर होता है, बस उसी में पढ़ा देते हैं आपको। तो मेरा हम्म मेरा मानना है कि अगर आपको रियली में, अगर बेसिकली आप फॉन्ड ऑफ हो बाहर जाने के लिए, तो ठीक है। हम्म अदरवाइज तो मेरे हिसाब से आप उधर ही बैचलर्स कीजिए। और हम्म उधर का बैचलर्स इधर इधर का मास्टर्स ही है, आप समझ लीजिए। उससे ज्यादा वो दे आर नॉट टीचिंग एनीथिंग एल्स, नॉट एनी अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, सेम सिमिलर सब्जेक्ट्स, सिमिलर कोर्स कंटेंट। हम्म और मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि मैं बैचलर्स में ज्यादा सीखा होगा इधर कंपैरेटिवली मास्टर्स से ज्यादा। सो ओके। ये है कि अगर आपको जाना ही है यूएस, तो आप जा सकते हैं 12th के बाद भी। बट हम्म अगेन मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि हम्म बैचलर्स आप उधर कीजिए और फिर मास्टर्स का आइए इधर। क्योंकि आपको क्या है, मास्टर्स यहाँ लोग कैसा करते हैं कि हम्म, हम लोग जब मैं आया था ना, तो सब लोग एक एक साल में मास्टर्स खत्म कर देते हैं। दे डोंट हाँ इवन गो फॉर लाइक 2 years मास्टर सब्जेक्ट। तो एक साल हाँ में खत्म कर देते थे, फिर वो चार, उसका टोटल 5 साल का वीजा रहता था। तो फिर हाँ। वो 4 साल में H1B अप्लाई करने का ट्राई करते थे, तो ये रहता था। अभी तो तो थोड़ी सी। मैंने भी 1.5 साल में ही खत्म किया है। मैं जल्दी कर सकता था, पर मुझे पता नहीं था ये सब। तो यहाँ अच्छा। आने के बाद सब बात पता चला कि एक साल में भी आप खत्म कर सकते हो। तो बेसिकली आप फीस भी बचता है आपका, और आप जल्दी से खत्म भी कर सकते हो, तो अगर किसी का ऐसा गोल है एटलीस्ट कि भैया। जो स्किल्स है वो सब तो आपने बैचलर्स में सीख ही लिए, तो आपको हाँ, मास्टर्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जैक्टली, यस यस। और मैं और आप समझता हूँ कि मैच्योर अगर आप भी होते बैचलर्स हो। हाँ, एज बैचलर्स के वाइज बाद भी आप अगर आप मैच्योर आते हो ना, होते हो। या बैचलर्स के अगर बाद ही आप आते हो ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा ही रहता है। मैं तो क्या हम्म, था, मैं बैचलर्स किया, उसके बाद फिर 3 4 साल 5 साल का जॉब किया उधर, और फिर आया अच्छा। था। फिर भी मुझे ओके। सब्जेक्ट्स आते थे। तो आप समझो कि आप बैचलर्स करके राइट अवे अगर आप आ गए 6 8 महीने में, तो फिर हाँ आपको आपको बेसिकली पता ही रहेगा कि क्या सिखाया रहा है सर, कैसे आप उसको सामने से आंसर करोगे, राइट? सो बेसिकली ऐसा रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक हाँ। नेटवर्किंग का सब्जेक्ट आता है हमारे कंप्यूटर्स में। तो हम्म, हमारे यहाँ एक चाइनीज मैडम का हमने सब्जेक्ट लिया था। तो अच्छा। पता नहीं क्लास में जब वो पूछती थी ना, मैं सब उनको आंसर वांसर दे देता था। तो सबको हाँ ऐसा लगता था कि ये खुद ही टीचर रह चुका होगा कहीं पे इंडिया मीडिया में। तो ये है हाँ कि आपको बेसिकली ज्यादा आइडिया रहता है। बैचलर्स उधर किया है, अगर आप इधर बाद में आ रहे हो, तो हाँ। इट्स मच बेटर ऑप्शन इन माय पर्सनल ओपिनियन। Okay, that's good. Whenever the students see our podcast, they will understand कि नहीं, हम मास्टर्स के लिए भी जाते हैं, क्योंकि अभी सब पेरेंट्स के यही कंफ्यूजन होता है कि बैचलर्स के लिए भेजे या मास्टर्स के लिए भेजे। तो जो पर्टिकुलर पर्सन वहां पे रहता है उनकी ओपिनियन ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि दे लिव एग्जैक्ट, देयर, दे एक्सपीरियंस देयर। यप यप, आई एग्री। एंड ऑल्सो कि मेरे मेरे पास में काफी सारे बंदे थे ऐसे साउथ इंडिया से जो काफी सारे लोग। तो वो हम्म। लोग तो बैचलर्स भी करते थे, और बाजू में वही मास्टर उधर जो भी ज्यादा डिमांडिंग कोर्स रहता वो कोर्स भी करके आते थे। तो अच्छा। हम लोग तो ऐसा समझते कि हम लोग बैचलर्स करके आए तो ये है, हो गया। वो लोग तो बैचलर्स के बाद कोर्स भी करके आएंगे, और फिर इधर मास्टर्स करेंगे, और फिर जॉब का अप्लाई भी करेंगे एक्सपीरियंस डाल के। तो ये भी ओके। है कि आप सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि आप बैचलर्स ही कर रहे हो। ट्राई टू हम्म। लर्न अनदर स्किल, में जैसे बता रहा था। तो वो हाँ एक्चुअली आपको हेल्प ही करेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जब आप 30 35 के हो जाओगे ना, तो बाय दैट हाँ। टाइम यू विल हैव लाइक 10 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। तो उसके यस। बाद तो अगर आप इजीली कहीं पे भी जॉब सिलेक्ट कर सकते हो। बट आपको यही है ना कि आप उस फील्ड में जाएंगे कैसे, पहला जॉब कैसे लेंगे, राइट?
तो पहला हम्म जॉब लेने के लिए आपको बेसिकली ना आपके कंपटीशन से आगे बढ़ना है। तो हम्म कंपटीशन के आगे बढ़ने के लिए आप ट्राई टू लर्न, कीप लर्निंग बेसिकली ऐसा नहीं है कि सब में अच्छे ही मार्क्स आने चाहिए, किसी हम्म में कम भी आए तो भी ज्यादा चिंता मत कीजिए। बट ट्राई हम्म टू कीप लर्निंग, समझिए आप की चीजें कैसे काम करती है। और हम्म एक बार आप समझ जाओगे तो फिर यू विल थ्राइव इन दैट करियर इजीली। ओके। यहाँ की हमारी इंडिया की लाइफस्टाइल में और वहाँ की लाइफस्टाइल में अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स, आप सपोज कि आप स्टूडेंट हो, ऐसे ही बताओ कि इंडिया की लाइफस्टाइल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वहाँ पे उसमें क्या फर्क है? हाँ, ये है कि आपका यहाँ पे क्लासेस बहुत आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्लासेस छोड़ दिया तो इंडिया की तरह आप पे हो जाओगे। कुछ कुछ हम्म क्लास आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ सकते। बट हम्म आप यहाँ पे अटेंडेंस मैटर करता है एक तो। दूसरा हम्म ये है कि यहाँ पे असाइनमेंट्स का बहुत बेसिकली है कि भैया जो भी आप क्लास में जाओगे ना, वो हम्म रेगुलरली असाइनमेंट्स देंगे, उसके भी मार्क गिने जाएंगे आपको एंड में। फिर हम्म कई सर सर होते हैं कि जो एक ही मिड टर्म लेते हैं एग्जाम, या कई सर होते हैं जो डबल मिड टर्म एग्जाम लेते हैं, उनके भी हम्म मार्क कैलकुलेट होते हैं लास्ट में। और एक फाइनल एग्जाम रहता है। तो फाइनल एग्जाम में ऐसा है कि डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेटाबेस का सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूँ। तो हम्म जिसमें हमारा जो एक प्रोफेसर था, उन्होंने हम्म एग्जाम दो लिए थे और एक हम्म फाइनल एग्जाम था। बट फाइनल हम्म एग्जाम क्या था? वो प्रैक्टिकल एग्जाम था, वो लिखने हम्म, विखने का नहीं एग्जाम। तो फाइनल अच्छा। में बेसिकली आपको वो टास्क देगा दैट यू हैव टू हम्म डू इट फ्रॉम योर होम। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप गूगल यूज कर सकते हो, आप एआई यूज करते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। बट आपको बेसिकली वो जो भी एग्जाम में पूछेगा आपको वो टास्क करके देना पड़ेगा आपको basically। तो हम्म ये, हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि एआई का हम यूज करके कर लेंगे, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो इतना इजी नहीं रहता है। आप बेसिकली क्लास में ध्यान दोगे, आप समझोगे चीजों को, तो आप कर सकते हो इजीली। तो ओके। यही है, और कुछ नहीं। अच्छा। एंड लिविंग एक्सपेंस की अगर बात करें ना इधर, हाँ ये तो जो, लिविंग एक्सपेंस ये है हाँ। कि अगर जैसे आपका फीस जनरली यहाँ पे फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ज्यादा रहता है थोड़ा। बट हम्म वो भी आप इजीली, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप अगर 3 या 4 सब्जेक्ट लेते हो एक सेमेस्टर में, राइट? तो फिफ्थ हम्म सब्जेक्ट आपको फ्री देते हैं, या तो $500 के करीब में दे देते हैं। तो ओके। जैसे एक सब्जेक्ट का $5,000 होगा, तो फिफ्थ हम्म सब्जेक्ट आपको $500 में पड़ेगा, ऐसा होता है। ओ, तो बेसिकली मतलब आप चार पैसा बचा सब्जेक्ट सकते हो। लिए तो पांचवा आपको कम काइंड पैसे ऑफ देना फ्री पड़ेगा। हो जाता है बेसिकली, $500 तो आप कुछ भी नहीं गिन सकते इधर। दैट मीन्स यू तो विल हैव ये टू है। टेक 4 सब्जेक्ट्स। या फिफ्थ सब्जेक्ट अगर आपको लेंगे तो आपको फिफ्थ सत्ता पड़ेगा, ऐसा है। इसीलिए लोग इधर साल में खत्म कर देते हैं मास्टर्स। अच्छा, इसलिए 4 सब्जेक्ट रहते तो पांचवा ऐसे हाँ, फ्री हो जाएगा और हाँ, जल्दी फ्री भी वो हो जाएंगे। फिर भी हो जाएंगे, यस एब्सोल्युटली। तो मैं बता रहा हूँ अच्छा। ना कि यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है H1 का और परमानेंट रेसिडेंसी का। तो H1 हम्म ये है कि यहाँ थोड़ा टाइम लेता है, 15 साल। बट हम्म अगर आप क्या, अगर एक बार अप्रूव हो गया है ना, तो बेसिकली आप उसको रिन्यू करा सकते हो 15 साल तक। एंड देन यू विल गेट योर परमानेंट रेसिडेंसी। अच्छा। जैसे परमानेंट रेसिडेंसी होता है, वो बेसिकली काइंड ऑफ सिटीजनशिप जैसा ही यार, होता है। हाँ हाँ हाँ, फाइन। अ, यहाँ पे इंडिया में तो सब हाथ में मिलता है ना खाना, मम्मी हाथ में बना के दे देगी खाना सब बनाना कुछ, पड़ता है यहाँ पे, मेड यहाँ पे ये सब कुछ। वो, तो वहाँ आपकी लाइफस्टाइल कैसी होती है? मैं खुद पर्सनली बात करूँ ना, तो मैं खुद भी खाना बना था जब मैं आया था। बेसिकली मैं तो मैरिज करके आया था, तो माय वाइफ वाज देयर इन इंडिया फॉर 10 months और सो। हम्म, आफ्टर आफ्टर दैट शी केम। बट वो जो भी हमने 8 या 9 महीने जो भी यहाँ पे रहे, तो हम खुद ही खाना बनाते थे। 1 या 2 दिन थे कि बाहर से खाना मंगा लिया तो चलेगा। बट फिर तो अच्छा आपको खुद भी पसंद नहीं आएगा बाहर का खाना इतना। आपको अच्छा। इतना जमेगा भी नहीं कि लाइक हर रोज तो आप बाहर नहीं खा सकते हो ना। तो नहीं खा बेसिकली, सकते, अफोर्ड भी करना और खुद इतने में ही सब करना सही है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा घर है जहाँ पे बेसिकली इन जो सारे इंडियन टेनेंट्स ही रहते हैं, और मेजोरिटी ऑफ देम आर स्टूडेंट। तो खुद हम्म भी खाना ही बनाते हैं वो। मैंने हार्डली किसी को बाहर से पिज्जा या कुछ मंगाते हुए देखा होगा। दे अच्छा जनरली कुक बाय देमसेल्फ। और काफी सारे दोस्त रहते हैं ना, तो कोई एक दिन कोई और बनाता है, कोई एक दिन कोई और बनाता है, तो क्या स्वाद वाद में भी मजा आ जाता है उनको। मतलब तो आपको बेसिकली अगर ग्रुप हाँ, शेफ बन के जाना है, खाना बनाना स्टेप तो बन के सीखना जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। खाना ओके। बनाना भी सीखना पड़ेगा आपको बेसिकली। घर के जो भी हाउस होल्ड कोर्स है वो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा बेसिकली। तो अच्छा ये तो एक अच्छी भी चीज है, लाइक दैट दैट विल टीच यू कि भैया पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप काम ही कर रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली यस यस। बोथ ऑफ देम यू कैन डू इट टुगेदर।
आप जो अभी की जनरेशन है उनको आपकी एज अ कंप्यूटर इंजीनियर कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स सीखे इंजीनियरिंग लैंग्वेजेस, और हम्म। ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलप करें। बेसिकली ऑलवेज स्टे अहेड ऑफ योर कंपटीशन। ऐसा नहीं कि आप उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर लूँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपको जो हम्म। अच्छा लगता है, आपको आपको जो सीखना है, आप उस पे फोकस कीजिए। ये हम्म। है कि उस एक सब्जेक्ट में कोई और आगे बढ़ गया तो बेसिकली डोंट प्रेशर योर सेल्फ टू बेसिकली कीप डाइविंग। I would हम्म। say keep learning is the motto of your life should be. And basically अगर आप किसी एक स्ट्रीम में अगर आपको पसंद है तो आप हम्म। उसमें झिझकिए मत, आप आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी। आई वुड से बेसिकली कंपटीशन से आगे रहिए, आपको ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी। यस। एक स्टार्टिंग में आप एक सेंटेंस बोले थे जो मुझे बहुत पसंद आया था कि आपने आपकी पैशन थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, यस। वो आपकी पैशन थी, आपको इंटरेस्ट भी था। और आपने कहीं ऐसा नहीं किया कि चलो यू आस्क टू समवन, या फिर आपने कोई रिलेटिव को पूछा कि नहीं मैं कंप्यूटर इंजीनियर करूं, कि ये कंप्यूटर इंजीनियर है तो मैं बन जाऊं। बट इट्स योर पैशन, इट्स योर ड्रीम, इट्स योर इंटरेस्ट। तो क्या ये सब करियर जो अभी आप हो, यू आर अ सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर, राइट? तो आप में पैशन थी, आप में इंटरेस्ट था, इसलिए आप ये मुकाम पे पहुंचे। तो ये मैटर करता है। हाँ, अब बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आप यही है ना कि आप पहले स्टार्ट कैसे करो। सर्वाइव यू हैव टू डू इट फॉर फर्स्ट 5 or 4 years, हम्म। आफ्टर दैट तो आप मास्टर्स हो जाओगे, हम्म। आपको फिर किसी का हेल्प का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, कोई आपको ज्ञान देगा तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। तो पहला पहला 4-5 साल है जो आपको ऐसा है कि लाइक यू नीड दैट समथिंग दैट बेसिकली ड्राइव्स यू देयर, दैट हाँ। बेसिकली अचीव्स द रिजल्ट फॉर यू। सो दैट्स नथिंग बट द पैशन। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जी। कि मेरा यूएस में पहला जॉब लगने से पहले मैंने मिनिमम 500+ एप्लीकेशंस करी होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। अच्छा। तो ये You भी said है to कि me, yes, those who are living in US and they feel that, give me a minute, those who are living in US right now and they all feel that nowadays they don't have job. Now, see what Chirag said. Can you please repeat this sentence? या बेसिकली आफ्टर आई फिनिश माई मास्टर, बिफोर आई फिनिश माई मास्टर्स, आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर ओवर 500+ जॉब्स। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि मेरे को पहला अपॉर्चुनिटी मिल गया और मैंने ले लिया। आई फेल्ड लाइक 3 इंटरव्यूज बिफोर आई गॉट द फोर्थ इंटरव्यू बेसिकली। आफ्टर ऑफ दैट 500 आई गॉट 4 इंटरव्यूज, फोर्थ हाँ। वन आई फाउंड। तो अच्छा। ये है कि ये है ना कि आप बेसिकली ऐसा नहीं समझिए कि आपको बेसिकली कुछ बैठा बैठा मिल जाएगा। आपको हम्म। बेसिकली ड्राइव करना पड़ेगा खुद से ही। आपको हम्म। इफ यू फेल बेसिकली देयर इज नो टाइम टू सॉरो, कम बैक हम्म। अप एंड बेसिकली कीप डूइंग व्हाट यू नीड टू डू। Yes, that means failures is an opportunity. It is not end point in our life. या मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि मैं 3 इंटरव्यूज फेल किए, तो बेसिकली मैं तीनों इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर साइड पे लिखता भी था कि उन्होंने क्या पूछे थे और मैंने क्या जवाब दिया था, और फिर जाके उसको अभी भी कोई भी इंटरव्यू देता हूँ, इफ आई फेल एन इंटरव्यू आई जस्ट लाइक गो एंड ट्राई टू बेसिकली फाइंड आउट कि उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि मेरे हम्म। पूरा करियर में मैंने 100+ इंटरव्यूज दिए होंगे या लिए भी होंगे। तो अच्छा। कोई भी आंसर कभी भी मैच नहीं करता। आप ऑनलाइन जाके देख लो, कहीं भी जाके देख लो, कोई भी आंसर कभी कोई सेम देगा नहीं आपको, कहीं से कहीं और से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। फंडामेंटल्स थोड़ा सही में रहेगा बट बेसिकली आंसर्स थोड़ा वेरी ही करेगा। तो बेसिकली यू शुड बेटर टेक डाउन नोट्स व्हेन एवर यू फेल एंड सी इफ दैट कैन बेसिकली आप मेक श्योर करिए कि वो सेम मिस्टेक आप रिपीट ना करो। Mhm. That means whenever you are going for an interview, if you are getting failure, you don't feel that oh it's my end point, but you write down that क्या पूछा उन्होंने, कौन कौन से पॉइंट्स थे जो मिस आउट हो गए, तो सेकंड इंटरव्यू में आप उसको रिकनेक्ट कर सकते हो और बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? व्हाट यू आर एग्जैक्टली, सेइंग। यस, यस, यप, यप। तो आप अभी भी मैं ऐसा ही करता हूँ, लाइक इफ somebody asks me some question, राइट, अभी तो पूरा डिटेल में क्वेश्चंस करते हैं जब भी इंटरव्यू जाते हैं। तो बेसिकली मेजोरिटी चीज तो मुझे पता होती है, बट लेट्स से अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया आड़ा टेढ़ा जो हमको पता नहीं है, जो थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में जब हमने काम नहीं किया है, समझे नहीं है, तो बेसिकली दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली इट्स बेटर टू राइट देम डाउन, अंडरस्टैंड
कि हम्म क्वेश्चन क्या था। लाइक हम्म जनरली क्वेश्चन होता है कि हमने बेसिकली कोई पर्टिकुलर फायर फाइटिंग सिनेरियो पे काम किया है कि नहीं किया है। लेट्स से कुछ लाइव सिस्टम में कुछ इश्यू आया तो आपने ऐसे सिचुएशन में क्या किया था, लास्ट प्रोजेक्ट में कैसे आपने ओवरकम किया था। वो सब हम्म ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो बेसिकली हर एक चीज का अलग अलग फंडा रहता है, बट यही है कि आप बेसिकली प्रिपेयर करिए सेम टू सेम क्वेश्चंस। अगर वो हम्म कुछ और पूछ रहा है तो आप बेसिकली ट्राई टू आंसर दैट। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप समझिए वो क्या पूछना चाहता है। तो बेसिकली ऐसे आप basically as I said, try to stay away, stay one step ahead of your competition, try to keep हम्म learning। वो आपको क्या पूछ रहा है, आप बेसिकली पहले से आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो यही नहीं अच्छा होता कि स्किल भी आपने कर लिया, बट ये भी होता है हम्म कि आप उसको कैसे कन्विंस भी कर सकते हो, दैट योर अच्छा आंसर इज राइट। कभी कभी ऐसे इंटरव्यू में आप आर्ग्यू भी करने लग जाते हो कि नहीं नहीं सर, जो आप बोल रहे हो गलत है, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया हुआ है, राइट। तो यही हाँ चीज रहता है, और कुछ नहीं। अच्छा तो नेगोशिएशन भी करना पड़ता होगा। हाँ, सैलरी नेगोशिएशन तो बड़ा रहता है। बट यही है ना कि देखिए, अब अगर जैसे मैं बता रहा था ना, कि अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट हाँ में क्या है क्या नहीं है, राइट, तो आप बेसिकली अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप समझिए कि वो कंपनी कैसा है, वो मार्केट में वो क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पे तो काफी सारे आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कि भैया इतना सैलरी क्या, ये जॉब का कितना सैलरी देते हैं इतने सालों का। तो काफी एवरेज लोग भी बताते हैं कि भैया इतना इतना मिलना चाहिए था। आप उस हिसाब से कन्विंस कर सकते हो या आगे मैसेज दे सकते हो। बट हम्म अगर मैं पैसों की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे जो फील्ड में मैं जॉब करता हूँ वो फील्ड में आपको 80 से 90, 80 से 90 से ज्यादा मिल जाता है, लाइक पर आवर, दैट पर इज पर आवर। यस तो आपको बेसिकली ऑलमोस्ट 18 या 20 हजार के करीब मंथली हो जाते हैं डॉलर्स। तो दैट्स ग्रेट बेसिकली दैट्स या, ग्रेट और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि बेसिकली दे वर्क फ्रॉम होम ओनली, दे डोंट इवन गो टू ऑफिसेज। मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे वर्क फ्रॉम होम। लाइक मैंने यहाँ पे नहीं तो 15 या 17 प्रोजेक्ट में काम किया है। एंड मेजोरिटी ऑफ माई टीम मेंबर्स आइदर दे वर्क फ्रॉम होम और दे कम लाइक 1 or 2 days होम। अगर कुछ यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे वो लोग फैमिलीज को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, कंपनीज को। अगर आपको कुछ इश्यू आया तो आप बेसिकली वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। Oh, that is very good, huh? Yeah. Otherwise, here you will not get that को फैमिली भी है भी तो आपको आना तो पड़ेगा ही हाँ जॉब हाँ। और यहाँ पे है कि सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है हमेशा। कोई भी जॉब करोगे आप, मेजोरिटी ऑफ सैटरडे संडे आपको ऑफ ही रहता है। मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्री में सैटरडे संडे हमेशा ऑफ रहता है। और लॉन्ग वीकेंड का ऐसा है कि इंडिया में ऐसा है कि आपको जैसे सैटरडे, आपका सैटरडे संडे ऑफ है, तो कई कंपनीज में ऐसा है कि आप फ्राइडे को लीव नहीं ले सकते हैं, या तो हाँ मंडे लीव नहीं ले सकते हो। यस ट्रू यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप मंडे को भी लीव ले सकते हो आराम से, फ्राइडे को भी लीव ले सकते हो। इंडिया में उसको सैंडविच लीव भी बोलते हैं, कि आपको हाँ नहीं दे सकते वो लोग लीव। ऐसा होता तो है ये कि है। सैटरडे संडे छुट्टी आई और आपने फ्राइडे लिया और नहीं गए मंडे तो 1 2 3 4 कट कट एग्जैक्टली, या। और मैंने काफी सारा वो एक्सपीरियंस किया भी है। काफी सारी कंपनीज थी इंडिया में बहुत पहले जो ऐसा करती थी। अभी अभी का तो पता नहीं ऐसा करते हैं कि नहीं, बट यार ये कल्चरल डिफरेंस है कि इंडिया में ऐसा करते हैं, यूएस में ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा that means there is cultural difference also in salary point of view also there is a difference according to we talked about the degree that means bachelor's and master यहाँ पे भी difference है मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे difference तो है हाँ, सिनारियो भी difference है ये भी skills है कि आपको डिफरेंस भी है, और आपको ये भी देखना है ना कि आप बेसिकली कैसे खुद को डाल सकते हो डिफरेंस में, राइट। हम्म अल्टीमेटली मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, राइट। जैसे कि जी आप आईफोन देखो आप, तो हम्म आईफोन इंडिया में रखना आपको एक लग्जरी हो जाता है। कई लोगों यस का शायद सालाना सैलरी हो जाता है वो। हम्म यहाँ पे वो मैकडोनल्ड वाला, बर्गर किंग में काम करने वाला भी बंदा जो भी अवरली $15 काम पे बना रहा है, तो वो भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो ये भी है कि मैं बता रहा हूँ जैसे कि टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू हम्म एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम्म तो बस यही है और कुछ नहीं। नहीं बहुत सारे दैट मीन्स वी गॉट सो मच नॉलेज और ये प्रैक्टिकल चीजें जानना अभी के जो यूथ है उसके लिए बहुत जरूरी था और हमारा जो आज की जो हमारा कॉन्वर्सेशन है
सही में जब लोग पूरा सुनेंगे तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो उनकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि आपने हिडन कॉस्ट की बात की, आपको बैचलर्स में जाते हो तो क्या होगा, मास्टर्स में जाते हो तो क्या होगा, कौन सी स्किल्स चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, मतलब एवरीथिंग भी इंक्लूडेड इन आवर कॉन्वर्सेशन। Yeah. थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन ही पूछती हूँ कि यू डिड Will you? मैरिज इन योर राइट टाइम और यू हैव ब्यूटीफुल किड्स आल्सो, सो लेट्स से हाय टू देम। Sure. हाय बोल Let दे me show उनके। them. Let me show them. They are downstairs. They come and have them. So yes, they here they will see your Aizal? house also somewhere. Mhm. Yeah. Aizal, come here. Come here. They want to say hi. Say hi. Say hi. Hi. Hey, hi Aizil, and your तो दूसरा champion. दूसरा वाला सो गया है अभी. अच्छा, कोई बात Say नहीं, hi. and if you Hi. इसको अभी hi, गुजराती सिखा रहे हैं. अभी उसको थोड़ा गुजराती थोड़ा थोड़ा आता है. કેમ છો બેટા, Right? મજામાં છો? એ તો Yeah. આવડશે. મજામાં. 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 And we will say hi to your beautiful wife also if she is here. Yeah, she has the baby. Okay, no issues. Yeah, she's here. Hi. She's not feeling well right now. Yeah. Okay. Yes, Chirag, thank you so very much for joining with us and for your valuable time. ये हमारी मेमोरी रहेगी और इससे बहुत सारे लोग को अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी फ्यूचर में। और अगर कोई आपको पर्सनल मैसेज भी करते हैं कभी कि सर हमें इसके बारे में थोड़ा समझाइएगा, तो प्लीज उनको आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे हाँ हम सर, एंड पक्का कर। पक्का. कभी भी किसी भी चीज का हेल्प चाहिए तो आप फील फ्री टू रीच मी. मैं तो यहाँ पे काफी लोगों को हेल्प भी करता हूँ. मेरा दूसरा भी घर है. यू नो, इफ हाँ, यस। somebody comes to USA, if they need some place to stay for a while or something, let me know. I'll be more than happy to help. So everyone, we are ending our session here. Thank you so much, Chirag, and your beautiful two kids and your lovely wife. We will in future if you feel that चलो कुछ और बात करते हैं तो आपको मैं जरूर आपका मैं क्या बोलते हैं कि फिर से इंट्रोडक्शन करेंगे कुछ नए फील्ड में। ठीक है, ठीक है पक्का. कोई बात यस। नहीं. I'll be more than happy to help. बट मुझे हाँ, Anytime. मजा आया एकदम। बहुत सारी ऐसी चीज थी, एसएपी एसएपी मैं भी सुन रही थी, एसएपी एसएपी एज द करियर काउंसलर जो डिटेल में नहीं आता था ना, आज आपने मुझे भी सिखा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यस एंड No problem. या ओके, Okay, थैंक okay. यू। Nice meeting you. या Yeah. विल मीट यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है. बाय Bye bye. Bye bye बाय। everybody.